Hello friends, my name is Jitendra. I welcome you all on Simply MBA. Today we discuss about environmental analysis which is quite important. अगर आप कोई business start कर रहे हो, you are launching a product or on a regular basis it's necessary to sustain in the market. As right now it's in quite competitive market. So on a regular basis you need to go for that environmental analysis. So let's inspect it. So in this session, there are many things which we will going to cover. So first thing first, as we start with STP. हमने STP से start किया था, that is called segmentation, targeting and positioning. One thing we have already covered, that is identify the category. Once you identify कि okay, in this category I am going to launch my product. So category means आप एक सन क्रीम लॉन्च करने वाले हो और आप एक रिफाइन ऑयल लॉन्च करने वाले हो, आप एक डिटर्जेंट लॉन्च करने वाले हो. सो दिस इज कॉल्ड अ कैटेगरी. वंस यू डिसाइडेड ओके दैट इज माय कैटेगरी, द नेक्स्ट स्टेप इज कॉल्ड सेगमेंटेशन, which we already discussed in our previous session. If you don't have that much idea about segmentation, you can just visit our specific session which is based on segmentation. So in segmentation, what basically we do, we divide the entire market into the different zone as per their behavior, income, and there are many ways: demographic way, geographic way, psychographic. So there are another way also, right? So once you are done with segmentation, then this is your job to just analyze the environment. Why so? ये हम इसमें समझेंगे कि why it is so important to analyze the environment. यहाँ पे environment का मतलब पर्यावरण नहीं है. This is called business environment, right? So let's start with the first question and very important question: why? Why we need to go for this environmental analysis? The first thing, that no business can be done in isolation. बिकॉज जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं, डेफिनेटली बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होंगी वो ह्यूमन टू ह्यूमन होंगी. सो वो आप आइसोलेशन या किसी आइसलैंड या ग्रीन लैंड पे नहीं कर सकते हो. फॉर दैट यू नीड ए सोसाइटी, यू नीड ए ग्रुप ऑफ पीपल बाई विच यू कैन एक्सचेंज द सर्विसेज एंड प्रोडक्ट, एंड उसके बिहाफ पे आपको कुछ पैसा मिले या कुछ और चीज़ें मिले, राइट? सो दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द एनवायरमेंट, बिकॉज अगर लोग होंगे तो इन्वायरमेंट भी होगा. नेक्स्ट थिंग जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बिजनेस ए पार्ट ऑफ सोशल सिस्टम, इट इन्वॉल्व ह्यूमंस. विदाउट ह्यूमन यू कांट डू अ बिजनेस. सो दैट्स वाई इन्वायरमेंटल एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ चेंजेस. So your business itself, it is not in isolation, it's in between a society. So definitely we need to look after each and every aspect. So that's why environmental analysis is very important, right? अब यहाँ पर हम समझते हैं कि environmental analysis होता किस तरह से. So it divided into two parts. First one is called micro analysis. Suppose this is your product, this is your business, or this is your service. So this zone, it means this particular zone, यहां से लेके यहां तक की अगर मैं बात करूं, दिस इज कॉल्ड माइक्रो एनालिसिस. सो माइक्रो एनालिसिस मीन कुछ ऐसी चीजें होंगी विच डायरेक्टली इंपैक्ट ऑन योर बिजनेस. सो इफ यू आर इन अ मार्केट कि आप डिटर्जेंट लॉन्च करने वाले हो, सो देयर आर सर्टेन थिंग विच डायरेक्टली इंपैक्ट योर बिजनेस. सो दीज कैटेगरी, these factors are called come under micro analysis, जिनका आपको माइक्रो एनालिसिस के तहत you need to analyze. There are certain part, एक दूसरी कैटेगरी आ जाएगी, एक दूसरा जोन आ जाएगा, this zone is called macro analysis. मैक्रो एनालिसिस वो है जो आपके बिजनेस को इनडायरेक्टली इंपैक्ट करेगा. सो ये आपको लगेगा डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं कर रहा है, बट डेफिनेटली इनडायरेक्टली इट इंपैक्ट योर बिजनेस. So that's why when we talk about environmental analysis, we need to analyze both micro environment and macro environment, right? So one by one we understand the importance
and how we correlate, what kind of analysis we need to do, right? So this is first thing, that micro environment analysis. इसमें जो सबसे पहली चीज आती है that is called customer, because in business customer is a king. So सबसे पहले जो you करना होता है, you need to analyze that the behavior, that is the style of your customer. I give you one example. अगर हम ड्रिंक्स की बात करें तो अभी हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक्स भी हैं और हेल्थ ड्रिंक भी हैं. अभी आप ग्रेजुअली, अगर मैं आपको स्टार्टिंग 2000 के आसपास ले चलूं, देन देयर इज ए मार्केट ऑफ पेप्सी, कोक एंड अदर सॉफ्ट ड्रिंक्स. ठीक, बिकॉज होता क्या था, आदमी के पास उतना ही पैसा है, आदमी उतना ही अफोर्ड कर सकता है. बट ग्रेजुअली जैसे आदमी के पास पैसा आया, ही रियलाइज कि नहीं यार, मेरे को ये वाली ड्रिंक नहीं पीनी है, आई विल गो फॉर एन हेल्दी ड्रिंक. एंड इस कैटेगरी में कौन से आ गए हैं? नेचर की आ गई हैं, रियल्स की आ गई हैं, फ्रूट्स, एंड देयर आर मेनी अदर products are there in the market which is introduced as an health drink. Why so? Because your customer is change. पहले जो 2000 में जिसके पास एक certain money थी, he can just afford Pepsi, Coke. आज वही आदमी जब उसके पास उसकी इनकम बढ़ी है and he feel कि नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक से there are many, it means it's harmful, then he realize कि नहीं, मेरे को ये नहीं पीना, मेरे को ये जाना. The same customer is change. So that's why you need to analyze your customer first, कि आपके कस्टमर की किस तरह की नीड्स है अभी. Once you done with this, then the next one is a competitor. Because देखो, कस्टमर आपके बिजनेस को डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा. That's why it's come under micro environment analysis. Next thing is a competitor. Competitor को भी जानना बड़ा जरूरी है. Because if you are introducing, if you are jump into a market, so before jumping into the market you need to analyze कि उस मार्केट में और कौन कौन से कॉम्पिटिटर हैं. अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. If you are jump into the market of smartphone, so there are many competitor. There is iPhone, there is Realme, there is Samsung, there are other player like Motorola and many more. So as you jump into the market, you need to analyze ये कौन कौन से कॉम्पिटिटर हैं, उनकी क्या स्पेशलिटी है, वो क्या ऑफर कर रहे हैं, उनकी क्या यूएसपी है. सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द मार्केट एज पर कॉम्पिटिटर, कि कितना कंपटीशन उस मार्केट में है, एंड जो आप ऑफर कर रहे हो क्या वो एक सस्टेनेबल अप्रोच है उस मार्केट में सस्टेन करने की या नहीं. इफ यू डोंट हैव दैट अप्रोच, so gradually you will be eradicate from the market. So that's why competitor analysis is very important. The next thing is called organization itself. आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का भी एनालिसिस करना पड़ेगा. आई गिव यू वन एग्जाम्पल. आई थिंक अभी से 10-15 साल पहले की बात होगी, मानेसर में मारुति के प्लांट में स्ट्राइक हो गई, जिसके चक्कर में उन्हें बड़े लॉसेस हुए, बिकॉज जो भी वर्कर था वो तो अपना स्ट्राइक पे था. सो समटाइम व्हाट विल हैपन, दिस इज जस्ट एन वन एग्जांपल. सो इट्स एन एचआर प्रॉब्लम बेसिकली. सो जरूरी नहीं है कि आपकी एचआर प्रॉब्लम हो सकती है आपकी ऑपरेशनल कोई चैलेंज हो सकता है कंपनी में कुछ हायरार्की में प्रॉब्लम्स हो सकता है कुछ मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो. सो दैट यू नीड टू चेक. बट आइडिया इज दिस, you need to analyze your organization itself, because in organization there are many verticals, so you need to cross check each vertical, and especially those जो कि primary related हैं business के, right? So this is called organization itself. Then supplier, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपके supplier की position क्या है. I give you one example. FMCG में होता क्या है, FMCG में there are many product जो कि सप्लायर पे डिपेंड करते हैं. अब हिंदुस्तान यूनिलीवर अगर आपको तेल दे रहा है, साबुन दे रहा है या कुछ भी दे रहा है, दे आर जस्ट गेटिंग फ्रॉम द सप्लायर एज ए रॉ मटेरियल, एंड रॉ मटेरियल से दे आर जस्ट कन्वर्टेड इनटू द फाइनल गुड्स. सो हियर यू नीड टू चेक द हेल्थ ऑफ सप्लायर.
कि वो क्या पोजीशन है उनकी. Are they capable enough to provide you the ample amount of inventory or raw material? I give you example, one more example. If you are in a car market, अब आपके टायर कहीं से आ रहे हैं और हो सकता है आपके बल्ब जो हैं वो भी कहीं से आ रहे हैं. इनके दो सप्लायर हैं बिकॉज इन कार कंपनी वो सारी चीज़ें नहीं बनाते हैं. सो हियर यू नीड टू चेक विद द सप्लायर कि क्या वो आपको वो प्रोडक्ट या वो क्वालिटी देंगे या नहीं देंगे, क्या उनके एक्सक्लूसिव किसी के साथ टाई अप है. सो दैट यू नीड टू चेक, राइट. वंस यू आर डन विद द सप्लायर देन देयर इज अ मार्केट. मार्केट को बिकॉज इट्स ऑल अबाउट मार्केट एंड मार्केटिंग, सो मार्केट को भी आपको एनालिसिस करना पड़ेगा. ग्रेजुअली इन अपकमिंग स्लाइड वी जस्ट डिस्कस इन डिटेल अबाउट इट, राइट. किस तरह का मार्केट होता है. एंड इंटरमीडिएटरीज, जब आप फाइनल गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाते हो तो देयर इज ए चेन. इफ दिस इज फ्रॉम योर फैक्ट्री एंड दिस इज द कस्टमर, right? Customer just want product from you. So in this chain there are stockers, there are wholesaler, there are retailer, and then there is a customer. So ये जो chain है आपकी intermediary जो भी हैं आपके, that you need to identify कि वो किस तरह के, क्या वो अपने प्रोडक्ट को आपके प्रोडक्ट्स को फाइनली कस्टमर तक पहुंचा पाएंगे या नहीं, या कितने इंटरमीडिएटरी हैं, उनके क्या मार्जिन है. कई बारी आप एक प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हो एंड यू फाइंड इट, आपने पहले कैलकुलेशन ये की होती है कि टू कस्टमर दिस इज द कॉस्ट, दिस इज द एमआरपी, बट ग्रेजुअली यू कम टू नो कि ओके देयर आर मेनी इंटरमीडिएटरी इन दिस एंड फाइनली फॉर कस्टमर इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव और आप मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाते हो. सो दैट्स वाई दीज एनालिसिस, दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इन ए shortcut way you can call it cosmic analysis. C for competitor, right? O for organization, S for supplier, M for market, I for intermediary, and C for customer. So cosmic analysis come under micro analysis. It means that is quite important to start a business. First analyze the micro environment. Next I just discuss about market. So that is quite important to analyze the market. I give you one example. The market size. If you are jumping into the market, you need to see कि कितना बड़ा market है ये, right? जैसे कोई कहे कि जी इंश्योरेंस मार्केट इंडिया में इतना बड़ा है, कितने डॉलर का मार्केट है. या एजुकेशन मार्केट जो है वो कितना बड़ा मार्केट है. ये टू व्हीलर मार्केट कितना बड़ा मार्केट है. इट मीन्स इस पूरे मार्केट में कितने लोग हैं. सो द मार्केट साइज इज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ऐसा ना हो कि आपका मार्केट ही बड़ा नीश मार्केट हो, राइट. एंड ग्रेजुअली यू विल फील कि आपके तो कस्टमर ही गिने चुने हैं एंड योर कॉस्ट इज सो हाई, सो आप उसको कवर अप ही ना कर पाओ, ठीक. इफ यू आर कम अप विद एन आइडिया कि मैं एक अलग सी चाय बनाऊं एंड ग्रेजुअली यू कम टू नो कि इसको पीने वाले ही कम हैं, so then automatically because your market is so niche, so that's why it's very important to analyze the market size कि आपका मार्केट कितना बड़ा है. next thing that is called market potential. sometime what will happen कि as you start a product you will realize कि मार्केट तो इतना बड़ा है ही नहीं, बट हो सकता है मार्केट पोटेंशियल ज़्यादा हो. पोटेंशियल मीन्स आज आपका मार्केट इतना है बट ग्रेजुअली इन ए स्पैन ऑफ 5 ईयर यू विल रियलाइज कि आपका मार्केट इतना बड़ा हो गया. आज मान लो ये $1 मिलियन का है, परसों ये $1 बिलियन का हो जाए या $1 ट्रिलियन का मार्केट हो जाए. सो दैट पोटेंशियल मार्केट यू नीड टू चेक. आई गिव यू वन एग्जाम्पल. ये कहा जाता है कि अफ्रीका में देयर इज अ कंपनी जिन्होंने फुटवेयर स्टार्ट किया, तो उस समय फुटवेयर कोई पहनता ही नहीं था. देयर इज नो मार्केट ऑफ फुटवेयर्स. सो उस तरीके से अगर देखा जाए तो देयर इज अ जीरो मार्केट. बट फिर ग्रेजुअली एक कंपनी ने स्टार्ट किया एंड दे एंड अप विद इन ग्रेट बिजनेस. वाई सो? बिकॉज दे इंट्रोड्यूस दिस थिंग फुटवेयर्स टू द अफ्रीकन पीपल. सो देयर इज एन पोटेंशियल मार्केट.
सो समटाइम ये होता है कि आपको डायरेक्ट नहीं दिखा जाता है, देयर इज ए हिडन मार्केट, सो दैट इज कॉल्ड मार्केट पोटेंशियल इज देयर। थर्ड थिंग दैट इज कॉल्ड मार्केट प्रॉफिटेबिलिटी। ऐसा ना हो कि उस मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी ही कम हो, बिकॉज बहुत सारे इस तरह से हो कि आपकी एक पर्टिकुलर कॉस्ट हुई जी 10 रुपये, और इतना कंपटीशन है या इतना वो चीज़ें हैं कि कस्टमर को चाहिए ही वो 12 रुपये में, और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी 2 रुपये की है और आपकी कॉस्ट आ रही है कहीं ऊपर। सो दैट यू नीड टू चेक कि क्या उस मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी है या नहीं है। सो दैट इज कम अंडर मार्केट एनालिसिस। एंड लास्ट थिंग दैट इज कॉल्ड दैट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये हम ग्रेजुअली एक पर्टिकुलर एक स्पेशल स्लाइड इस पे बात करेंगे जिसमें हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की भी बात करेंगे। देखो, प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस जिस तरह से होता है ग्रेजुअली ऊपर जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है जब प्रोडक्ट खत्म हो जाता है। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि वो किस फेज में, अपने इंट्रोडक्टरी में है, सैचुरेटेड में है, डिक्लाइन में है या एंड हो चुका है। तो ऐसा ना हो कि आप उस मार्केट में तब आओ जब वो मार्केट ही कोलैप्स करने वाला हो। आई गिव यू वन बेसिक एग्जांपल। अगर आप देखोगे इन द एरा ऑफ 2000 और 2008 के बीच में देयर आर मेनी इंजीनियरिंग कॉलेज। बस आपको इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की देर थी और आपके इंजीनियरिंग कॉलेज फुल। बट टुडे इन 2022 दिस पर्टिकुलर इंजीनियरिंग कॉलेज मार्केट इज डिक्लाइन। अब जो तब खुले थे इंजीनियरिंग कॉलेज, अब वो कुछ तो स्कूल में कन्वर्ट हो गए हैं और कुछ कंप्लीटली बंद हो गए, बिकॉज अब ये जो कैटेगरी है ये डिक्लाइन हो रही है। सो टुडे सपोज समबडी स्टार्ट ए इंजीनियरिंग कॉलेज, तो दे नीड टू अंडरस्टैंड कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उस मार्केट में जा रहा हूं जहां पे उस कैटेगरी की तो अभी डिक्लाइन फेज में है। सो दैट्स वाई मार्केट एनालिसिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। द लास्ट थिंग, सप्लाई चेन। डेफिनेटली उस मार्केट में किस तरह की सप्लाई चेन है। सप्लाई चेन पे वी जस्ट टेक ए कंप्लीट सेशन जिसमें हम स्टार्टिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल, सप्लायर, इंटरमीडिएटरी, कौन कौन से सारी चीज़ होती हैं, हाउ इट रीच टू द फाइनल कस्टमर, उस सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बट अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एनालाइज इट, राइट। The next thing which is quite important, it's come under this only, that is called Porter 5 forces. Porter ने एक बड़ा important चीज बताई कि when you start in with a new product and you jump into a new market, so कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं that you need to analyze well in advance। इसमें जो सबसे बड़ी चीज आती है, वैसे तो सारी important है, that is called competitor। हमें एक तो ये देखना होता है कि उस मार्केट में कितना कंपटीशन है, राइट। अगर हम आज बात करें 4 व्हीलर कैटेगरी की, तो बीइंग ए न्यू कंपनी टेस्ला इंट्रोड्यूस इनटू द इंडियन मार्केट, तो दे नीड टू एनालाइज कि भाई 4 व्हीलर कैटेगरी में व्हाट काइंड ऑफ कंपटीशन दे नीड टू फेस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट एन आइडिया कि किस तरह का कंपटीशन वहां है। अगली जो इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपने एक चीज स्टार्ट की बट ग्रेजुअली यू विल रियलाइज कि वहां पे तो दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है, तो टू सस्टेन इन दैट मार्केट इट इज लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू। सो होना ऐसा चाहिए कि उसमें किस तरह की कितनी न्यू एंट्रीज हैं, क्या कोई एंट्री बैरियर है। आई गिव यू एग्जाम्पल। देखो, आज अगर कोई दुकान खोलनी है तो उसमें कोई इतना एंट्री बैरियर नहीं है। आपके मोहल्ले में आज एक दुकान है, अगले साल 2 दुकानें होंगी, अगले साल हो सकता है 15 दुकानें हो, क्योंकि इसका एंट्री बैरियर बड़ा कम है। बट अगर मैं वहीं पे बात करूं जी कि आपको एक रिफाइनरी ओपन करनी है, ऑयल रिफाइनरी, तो एंट्री बैरियर काफी ज्यादा हाई है। अडानी अंबानी यही लोग हैं जो इस तरह की रिफाइनरीज को खोल सकते हैं, या गवर्नमेंट। सो इट मीन्स एंट्री बैरियर इज क्वाइट हाई, तो डेफिनेटली देयर इज एन चांस कि इतना ज़्यादा कंपटीशन इसमें नहीं होगा, हर डे कोई न्यू कॉम्पिटिटर नहीं आएगा, राइट। नेक्स्ट थिंग, बायर पावर। यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बायर की पावर, बार्गेनिंग पावर कितनी है। ऐसा तो नहीं है कि बायर के पास इतने सारे ऑप्शन हैं और बायर के पास ही सारी पावर है।
कि वो किसी को भी ऑप्ट कर सकता है, तो उसमें आपको मार्जिन्स को कम करने पड़ेंगे। आई गिव यू एग्जांपल, जैसे अगर आप एफएमसीजी में देखो, एक साबुन तब भी 10 रुपए का था, 10 साल पहले, आज भी 10 रुपए का है। एक पेप्सोडेंट तब भी एक पर्टिकुलर अमाउंट का था, आज भी एक पर्टिकुलर उसी अमाउंट में है। लेज के पैकेट तब भी 5 रुपए के थे, आज भी 5 रुपए के हैं। बिस्किट के पैकेट तब भी 10 रुपए के थे, आज भी 10 रुपए के हैं। वाई सो? बिकॉज दे नो कि दैट द पावर ऑफ बायर, अगर आप उसको इंक्रीज करते हो, ग्रेजुअली द कस्टमर विल गो अवे। सो ये भी आपको देखना है कि वो कितना सस्टेनेबल है आपके लिए। ऐसा तो नहीं उसके पास इतने सारे ऑप्शन है कि जस्ट ही जम्प इनटू टू द कॉम्पिटिटर। अगली चीज है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। ऐसा ना हो कि आप ऐसी कैटेगरी में जा रहे हो जहां पे थ्रेट बहुत ज्यादा हो सब्स्टिट्यूट का। गिव यू एग्जांपल, देयर इज एग्जांपल ऑफ रेडियो। अब मान लो आप ओपन करना चाह रहे हो अपना रेडियो, बट यू ग्रेजुअली नो कि लोग तो रेडियो सुन ही नहीं रहे, जो सुन भी रहे हैं वो कार में सुन रहे हैं या तो वो फोन पे सुन रहे हैं। ऑटोमेटिकली द मार्केट ऑफ रेडियो, आई एम टॉकिंग अबाउट रेडियो मशीन, सो इस मशीन का जो है वो सब्सिट्यूट ही नहीं ले गया। इसका कोई राइवल नहीं आया कि जी कोई ए ब्रांड और बी ब्रांड और सी ब्रांड और डी ब्रांड है रेडियो में, बट एक सब्सिट्यूट ने ये पूरी तरह से खत्म ही कर दिया मार्केट। राइट नाउ देयर इज नो रेडियो सिस्टम जो कि अभी बिक रहा हो, एक कैनवास का छोड़ के जिन्होंने कहा है कि हमारे इसमें 1000 गाने हैं, 10,000 गाने। अपार्ट फ्रॉम दिस, लोगों को लगता है हम अपनी कार में इनबिल्ड रेडियो सिस्टम है या फोन में इनबिल्ड रेडियो सिस्टम है, एंड दे आर नॉट द itself a radio, they are using as a substitute of it. And next is the supplier power. को ये भी देखना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि आपके सप्लायर के पास पूरी पावर हो, बिकॉज सप्लायर आपको रॉ मटेरियल देगा। एंड इफ देयर आर मेनी कॉम्पिटिटर, आई गिव यू एग्जांपल, जैसे हनी है, नेचुरल हनी। अब आपको पता है कि हनी लिमिटेड है, अगर आपको किसी को नेचुरल हनी देनी है, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। सो ये अगर आप नेचुरल हनी के लिए पतंजलि कहते हैं जी हम बना रहे हैं, डाबर वाले कहें जी हम बना रहे हैं, इतना हनी है ही नहीं, इतनी तो मधुमक्खियां भी नहीं है। तो यहाँ पे सप्लायर पावर काफ़ी हाई है, जिसके पास ओरिजिनल होगा वो किसी कॉस्ट पे भी इनको दे सकते हैं, अगर ये आगे कस्टमर को ओरिजिनल दें तो। सो यहाँ पे सप्लायर की पावर इज क्वाइट हाई। सो पॉटर ने इन 5 फोर्सेस को कहा है कि यू नीड टू एनालाइज as and when it's required, right? So jumped into the next thing that is called macro analysis. जैसे हमने माइक्रो एनालिसिस में वो चीजें पढ़ी which directly impact on your business, macro analysis is something जो directly तो नहीं, they impact your business indirectly. So ऐसा नहीं होगा कि it's कोई चीज आई और it's directly impact on your business. So it impact your business but indirectly, might be it take time to impact your business, or maybe it not 100% impact your business, to a certain percentage it impact your business, right? इसमें अगर हम सबसे पहले की बात करें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अभी इंडियन गवर्नमेंट ने अफगानिस्तान में बड़ा सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, उनकी जो संसद है हम ही उसको बिल्ड कर रहे थे, एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स जो हम वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे बना रहे थे। बट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल टर्बुलेंस, अगर किसी प्राइवेट फर्म ने ये सारी चीज़ें की हैं, सो दैट इज देयर लॉस, राइट? सो दैट्स वाई वी नीड टू बी वेरी कॉशियस कि आपका प्रोडक्ट ऐसा उस जहाँ भी जिस जगह भी आप कर रहे हो, चाहे वो कंट्री हो, स्टेट हो या कोई और चीज़ हो, और कितना बड़ा आपका बिजनेस है, यू नीड टू एनालाइज द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ दैट कंट्री, दैट स्टेट और दैट पर्टिकुलर जियोग्राफी, देन ओनली यू कैन जस्ट स्टार्ट योर बिजनेस। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, अनदर थिंग दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिकल एनवायरमेंटल एनालिसिस। अगर आप अभी श्रीलंका की कहानी देखें तो वहाँ पे इन्फ्लेशन का एक अलग ही दौर चल रहा है, इन्फ्लेशन भी चल रही है, इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हो गई है, देयर इज नो सस्टेनेबिलिटी। सो हियर यू नीड टू एनालाइज कि जब आप कहीं जगह स्टार्ट करो तो वहाँ के इकोनॉमिक्स क्या कह रही है इन ए लार्जर स्केल।
क्या उस देश की जीडीपी है, ये क्या उस स्टेट की कहानी है. Accordingly, you will start. There are many player in different categories wanted to launch their product, their services in India because they see कि इंडिया continuously grow कर रहा है. Our GDP is continuously increasing. So that's why by just analyzing our GDP, our economics, they just get into the market. Right? So हो सकता है उनके बिजनेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट ना करे, बट इन ए लार्जर सेल देखो उस कैटेगरी अगर ग्रो करेगी तो ऑटोमेटिकली एवरीबडी विल ग्रो. कैटेगरी इज नॉट ग्रोइंग देन हाउ कैन एवरीबडी कैन गेट द बेनिफिट. बिकॉज अगर 10 ही रुपये बट रहे हैं तो एक एक ही मिलेगा, बट अगर बटी लाख रुपए रहे हैं तो डेफिनेटली है सबके पास कुछ ना कुछ तो 10 रुपये से तो ज़्यादा ही आएगा. नेक्स्ट थिंग इज सोशियो कल्चर. हमें ये भी देखना पड़ता है कि उस पर्टिकुलर स्टेट का, उस पर्टिकुलर जोग्राफी का सोशियो कल्चर किस तरह का है, हाउ पीपल विल बिहेव. राइट, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. गिव यू वन एग्जाम्पल. अभी हुंडई ने लास्ट टाइम कश्मीर जो पीओके है, पाक अधिकृत कश्मीर, उसके इंडिपेंडेंस डे पे कुछ उनका इंटरनल मामला था, उस पर कहा कि दे आर विद पीओके, राइट, एंड दे आर विद द कश्मीर विच इज विद पाकिस्तान. इस पे पूरी इंडिया में हुंडई के लिए बाइकआउट होने लग गया. सो दैट यू नीड टू लुक द सोशियो एंड कल्चरल इम्पैक्ट कि किस तरह का वहाँ डायनेमिक्स चल रहे हैं. ऐसा ना हो यू स्टार्ट समथिंग एंड आपकी एक मिस्टेक के चक्कर में योर प्रोडक्ट विल फेस द डैमेज. राइट. द नेक्स्ट थिंग इज कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल, because this is the era of IoT and artificial intelligence. So that's why it's very important कि किस तरह के टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं. How technology will change your business or the behavior of your business. So looking, because technology is impacting on every business. So ये तो मुझे लगता है now not come under macro analysis, is come under micro analysis. कि आपको टेक्नोलॉजी तो इमीडिएट बेसिस पे यू नीड टू चेक कि व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आ दिया. आज देख लें और आज से 10 साल जो वर्क करने का तरीका था, इट्स टोटली चेंज. इवन ए स्मॉल बिजनेस, स्मॉल किराना, इवन ए सब्जी वाला और जस्ट एन जो रोड साइड लगे होते हैं ठेलियाँ एंड ऑल, दे आर यूजिंग पेटीएम एंड द यूपीआई एंड ऑल. वाई सो? बिकॉज टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग so rapidly, and that's why this analysis is quite important. Then there is in legality, you need to understand कि उस geography या उस state का क्या legal obligation है. आज भी कई चीज़ों में इंडिया में 100% FDI नहीं है, foreign direct invest नहीं है. That's why they are not coming. I give you one example like universities. कई सारी बड़ी रिनोन्ड यूनिवर्सिटी हैं, दे जस्ट वांट टू ओपन अप दियर कैंपस इन इंडिया, बट ओनली बिकॉज राइट नाउ, अब तो शायद आने वाली हैं अपकमिंग ईयर्स में, बट अभी अगर 1-2 साल पहले की बात करें तो एज पर द लीगल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ और FDI लॉ, देयर आर सर्टेन कैटेगरी जिनमें 100% FDI नहीं है, किसी में 50% FDI है, किसी में 75% FDI है, एंड देयर आर सर्टेन कैटेगरी जहाँ पे 100% FDI है. सो यू नीड टू जस्ट लुक इन टू इट किस तरह की लीगल कंडीशंस हैं. द लास्ट वन दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल एनालिसिस. ये वाला इन्वायरमेंट है जिसको हम पर्यावरण कहते हैं. राइट. सो इन एनवायरमेंटल एनालिसिस, इफ यू आर जस्ट ओपनिंग अप ए फैक्ट्री, यू नीड टू जस्ट क्रॉस चेक ऑल द एनवायरमेंटल लीगैलिटी कि वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं आपको फुलफिल करनी. देन ओनली यू नीड टू स्टार्ट. आई थिंक वेदांता का केस आपने सुना होगा. They are suffering a lot because of this, right? So under macro analysis, pestle analysis, this is called pestle. P stand for politics, E stand for economy, S stand for socioculture, T stand for technology, L stand for legal, and E stand for environmental analysis. So under environmental analysis, again I just concluded it divided into 2 parts, micro and macro. Micro means the factor which directly impact your business, and macro is something
which indirectly impact on your business. So both impact on your business, but one directly and one indirectly, or not 100% impact on your business. So under this, there is cosmic analysis and there is pestle analysis, right? So in next important session, which is quite important, that is called competitor analysis. Because जब भी आप किसी मार्केट में जाते हो, तो वहाँ पे कॉम्पिटिटर को एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. So tune in next episode, we just discuss about the competitor analysis. Thank you.